NAB has been conducting some excellent webinars over the last few weeks, and I am thankful to NAB to give me an opportunity today. So, as for myself, um, I am teaching in Delhi University for the last 43 years, and I am on the verge of my superannuation. My subject has been economics, so I have used my subject to good effect for financial purposes. I have created financial programs. I am an investor myself. I have been guiding other investors over the years. Some tools that I have been using myself and getting others the benefit of these tools. So today the topic for today is how to go about smart investing. So let us start. Let us come to that topic straight away. So any discussion today, any webinar today, it either is on the subject of COVID or somehow it happens to start with a reference to COVID. I would have rather not liked to start on this note, but somehow the topic of today's webinar is such that I do have to make a one-time reference to COVID. What COVID has done is to bring into prominence the issue of financial security of individuals and families. And once that is an issue, it introduces new dimensions into smart investing. Having said that, I don't propose to keep on repeating this word all through the webinar. If any, there will be limited references to the same. So, first things first. In economics, we say that saving and investment are twins, Siamese twins. They go hand in hand, always go together. Saving is not possible without investment. Investment is not possible without saving. So let us see if in practical life is it true. When we go about it in economic sense, in purely technical sense, they may be twins, but in real life, things are slightly different. Of course, when you want to invest for the first time, you do have to save. But it is not necessary that if you want to keep on investing, you need to keep on saving. No, not at all. I have done my work once to save, but eventually, what do I want? I want my investments to work. Investments to create incomes, investment to create more savings, and then I should have the choice of using those income streams that are created either to have more saving and investment or to improve my standard of living. So let this be clear that investment does not require necessarily, if investment is smart, it does not always require a continuous effort to work hard to save more and more in order to invest more and more. We just need to go about it the right way. As I said, we would love our investments to yield returns which can be reinvested to create more returns in a compounded way. Now let us see if
we do not save. What happens? What happens if we save but we do not invest? The biggest example is I save the money. I do not consume a part of my income. It keeps lying in my saving bank account. What does it do? It yields a return. What is this return? It is 3% per annum. Is it good enough? Let us see whether it is good enough. Uh, what would be the average rate of inflation today? Uh, Average annualized rate of inflation over the last few years has been 5%. So I keep my saving bank account above what I had saved, but at the end of it, the prices have gone up by 5%. What has happened to my savings? In real terms, the savings have gone down. What I could purchase 1 year back from my savings, I am not in a position to purchase now because things have gone more expensive than the amount of money that has gone up in my account. So this is what we say, that we always talk of savings bank account as a saving account. We never, no one would ever say that I have invested this money in a saving bank account, because by no means it is an investment. Your security with your savings in saving bank account, your security is going down. You are not making yourself more secure, you are making yourself less and less secure with passage of time. So what do we do? Let us gradually move to the better options. Why to have savings in a saving account? Why not keep it in a fixed deposit in a bank? Let us assume that the return would depend on tenure, but let us take some average return of 7%. 7% की रिटर्न है, तो ये हमें क्या दे रही है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर 5% है और 7% रिटर्न मिल रही है, we are getting something more than the rate of inflation. Our purchasing power at the end of the year is little more than what it was at the end of the year. After all the effort that we have made, we get at least a positive return, taking the average rate of inflation as 5%. 7% is the extra income. 5% is the extra inflation. So that gives me some semblance of security, maybe a year down the line with my savings. But is it good enough? Let us see. 2% in itself is not good enough. But remember that this return is not tax-free. It would be taxed at your marginal rate of tax. If you are not paying tax, you would get the entire income. But if you are paying 30% tax, then it would be 7% minus 30% of this. What does this come to? 2.1%. 7 minus 2.1, that is 4.9%, which again 4.9% is lower than the rate of inflation. So would you call it investment? Obviously no. My net tax, post-tax return is not able to keep up with the rate of inflation. So if at all this is investing in a marginal way, not much of investing, even if you are not paying any tax on this. Now, what do you do? Are there any better fixed deposits? Surely there are. Has anyone heard of a fixed deposit by the government of India, state government or central government? Probably no. In fact, there is nothing called a fixed deposit of government of India, but there are government bonds, central government bonds, which can be purchased, which are like fixed deposits,
a 10-year government bond, I can purchase it today. It can be redeemed after 10 years, and I do keep on getting interest on it at a rate slightly lower than the than what bank could pay me. I can purchase this bond, but then I have to keep it for 10 years. Some bonds are for longer durations, 15 years. Do I keep my money completely blocked? No. There is an option. There are certain mutual funds called gilt funds. They invest into government bonds. The bonds would mature at their appointed time. But if I invest in a gilt fund, I would have the right to sell this mutual fund anytime I want, and I exit it. I get more or less the return that the government pays us. Although, since the prices of government bonds keep on going up and down in the market slightly, in the long run they would yield the same result, but in the intermediate period they would slightly go up and down. So if I encash my investments in a gilt fund anytime, I would be getting more or less stable returns over time, but with the added advantage. As I said, the first advantage is if banks are secure, bank FD is secure, government bond is even more secure. Secondly, bank FD is not liquid, a gilt fund is completely liquid. And thirdly, a gilt fund investment takes care of inflation completely. When you tax your income in a gilt fund, what happens? First of all, it is indexed to the rate of inflation. If my inflation has been at 5% per annum, say 15% over 3 years, then my entire income is not taxed. The income over and above 15% is taxed, and that is taxed at a rate of 20%. So unlike a bank fixed deposit, my net return is not negative. It is not lower than the rate of inflation. It has to be somewhat better than the rate of inflation. So I get security of a government bond, plus the liquidity, plus the better tax efficiency in my investment. Now, with this being as it is, we move on to better options. Let us see what are the better options. Obviously, gilt fund is not smart investing. It is a little better than a bank fixed deposit, but it is not the smartest investment. Sir, I have a question to interrupt. Yes. Okay. So we all understand about savings account. We all know about saving account. So could you please explain a little bit about the gilt fund? Gilt fund. Okay. Yes. Gilt fund, mutual funds. What are mutual funds? Let us talk of say HDFC Mutual Fund. They collect money from thousands of investors, and they collect this money, and they use this money to buy government securities. So to say, what are called gilts. They invest this money to buy government securities. The entire money is used up. Apart from a small amount of cash, the entire money is used up to buy government securities. New investors keep on joining the fund. Old investors keep on exiting the fund. More or less there is a balance, but in case there are a few more people who are exiting the fund, then the fund has to sell these government securities in the market, take the money, and distribute this, not in fact distribute, but give this money to the person who is exiting the fund
at the prevailing NAV. What is NAV? NAV is the average price. So if there are 1,000 investors holding 1 lakh units, right? I repeat, 1 lakh units of the gilt fund, and the total value of these units is rupees 1 crores. 1 crore is the value. 1 lakh is the number of units. Divide 1 crore rupees by 1 lakh units. This is equal to rupees 100. This is called the NAV. This NAV will keep on slightly moving up and down on a day-to-day basis, but generally it will go up. So if I had invested at a price of 90 rupees and I am exiting at a price of 100 rupees, I get whatever return, 10% or something. And this return is generally higher than the rate of inflation. Now, on a day-to-day basis, it may go up and down by a few paisa. Maybe on 30th May, the return that I am getting, on the next working day, it might be 1 decimal point lower than what it was on the previous day. But by and large, the returns would be slightly more or less equal to the fixed deposit of a bank, roughly the same, with the added advantage that the day I want to exit my investment, I just give an instruction to the mutual fund. They will redeem this money within 2-3 days into my bank account. No physical thing. In fact, even in this time of COVID, it doesn't require any physical interaction. Just give an online instruction, and you find that the 3rd day the money is credited to your bank account. So, as we will talk later, equity investments of mutual funds are surely risky. But investments, gilt investments or investments in government bonds, they have all these advantages: tax efficient, no negative returns, full safety, and full liquidity. So I hope I have answered your question, Mukesh. Hello. Yes, sir, completely. Thank you. So we carry on from here. Yes. Now we move to a little. This was what I would call even gilt investing, gilt fund investing, not necessarily smart investing, more or less dump investing. So we move to now certain aspects of smart investing. So smart investing we don't start investing straight away. We try to understand ourselves first before we go on to the markets. मैं क्या हूँ, मैं किस तरह का पर्सन हूँ? Am I a risk averse person? क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ? रिस्क क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या मैं अपने पैसे की वैल्यू ऊपर या नीचे जाते देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ. अगर मुझे ज्यादा अपसाइड चाहिए तो मुझे रिस्क भी लेना पड़ेगा, पर अगर मैं रिस्क नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो आई एम बेटर ऑफ, मुझे सेफ रिटर्न मिल जाए, भले ही वो कम हो, पर मेरी लाइफ में टेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरा बीपी ऊपर नहीं जाना चाहिए, हर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने के साथ मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो पहली चीज, एज एन इंडिविजुअल मेरा टेम्परामेंट क्या है? मैं हाई रिटर्न और हाई रिस्क दोनों एक साथ जाती हैं. The two always go together. Higher the risk, the higher the return. Lower the risk, the lower the return. तो पहली चीज मुझे अपना टेम्परामेंट समझना है. दूसरा, मैंने अपनी एज देखनी है. अगर मैं एक सीनियर सिटीजन होने वाला हूँ या हो चुका हूँ, तो मैं अपने मनी के साथ उस तरह से जो है
मेरे साथ कभी भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं वो रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं रहता हूँ. एट ए यंगर एज आई एम लुकिंग फॉर हायर रिटर्न्स इन ए पोजीशन टू टेक मोर रिस्क्स. तो यंग एज में मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ओल्ड एज में नहीं कर सकता. और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे गोल्स क्या हैं? क्या गोल्स हैं मेरे लाइफ में? बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की वेडिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे कभी ना कभी रिटायर होना होगा. उस टाइम पर मुझे एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम चाहिए, और वो इनकम स्ट्रीम अच्छी खासी हो सके. तो नथिंग लाइक दैट. और इसके साथ ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए: एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, वेडिंग ऑफ चिल्ड्रन, रिटायरमेंट, maybe purchasing a home sometimes down the line. पर इसके साथ साथ मेरे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो होते हैं. मुझे अगले 6 महीने में जो है मुझे एक हॉलीडे करना है, 1 वीक की वेकेशन में मुझे जाना है. मे भी कहीं इंडिया में ही जाना है, या मे भी मुझे कहीं अब्रॉड जाना है. तो ये मुझे अगर इन्वेस्टिंग स्मार्ट करनी है तो मुझे ये सारी चीजें क्लियर करनी होंगी, और अपने गोल्स डिफाइन तो करने हैं, पर गोल्स को सेपरेट करना है. शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म गोल्स से बिल्कुल सेपरेट करना है. तो अब मैं पूछूं, मेरे ख्याल से विदाउट एनी डाउट अगर मैं ये पूछूं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्या है, आज हर कोई कहेगा उसमें इक्विटी जो है वो मेजर पोर्शन होना चाहिए. शेयर्स के बिना आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल सकती है. तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. आज मोस्ट लोग जानते हैं कि शेयर्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड्स. पर अगर मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और मैंने मिक्स कर दिया, शेयर्स की इन्वेस्टमेंट अच्छे रिटर्न देती है, और मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल को भी लिंक कर दिया, 6 महीने के बाद अगर मुझे एक हॉलीडे पर जाना है, लेट अस टेक ए स्पेसिफिक एग्जांपल. अगर मैं पिछली क्रिसमस पर 25 दिसंबर को मैंने सोचा कि मुझे जून 2020 में हॉलीडे पर जाना है, और मेरे पास 50,000 रुपया तो है, मैं इसे स्टॉक मार्केट में लगा दूं. अगर ये 75,000 हो जाएगा तो मेरी जो है हॉलीडे जो है मेरी और ज्यादा एंजॉयबल हो जाएगी. तो व्हाई नॉट गो फॉर इक्विटी. तो टेकिंग दिस स्पेसिफिक एग्जांपल, हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं जो कि बताते हैं कि स्टॉक्स की वैल्यू क्या है, निफ्टी एक मेजर इंडेक्स है, इसकी वैल्यू थी क्रिसमस के डे पर 12,214. बैड टाइम्स आए और ये निफ्टी की वैल्यू गिर के हो गई कितनी, 7,800 on 23rd March, the day the first lockdown was announced. अब मैंने मैंने क्या कहा था, मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मैं उसे 75,000 करना चाहता हूँ. I want a 50% return on my investment. With a 50,000 already in my balance, I want another 25,000. So what happens now? With the Nifty having gone down so much, मेरे 50,000 की वैल्यू क्या रह गई, 31,150. लॉकडाउन ने मेरे हॉलीडे को तो मार ही लिया, मेरा हॉलीडे तो खत्म कर दिया. कम से कम मेरी जो है हॉलीडे के लिए जो सेविंग्स की गई थी वो तो छोड़ दी होती. मेरा हॉलीडे भी गया और मेरी सेविंग्स भी गई, जो कि अगर बैंक अकाउंट में पड़ी होती तो उसमें वही 2-3% की रिटर्न मिलती ना मिलती, पर 50,000 का 50,000 तो इंटैक्ट रहता. तो whenever we have short term goals, never look for investment in equity. It is a double edged sword. ऐसी धार मारेगी कि जो है सब कुछ खत्म कर देगी, और जब आप किसी भी प्राइस पर आप एग्जिट करोगे, अगली बार आप हॉलीडे करोगे तो
कोविड खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, हॉलीडे का माहौल बना होगा, पर आपको ये ध्यान आएगा कि मैंने किस तरह से अपनी सेविंग्स इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो डू नॉट मिक्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। Sir, can we take a question? हाँ, yes, Mukesh. Okay. There's this Ankur who is asking, is it a smart move to invest in mutual fund when the market is faring well, is not faring well, or the NAV is less? It is a very smart move, probably assuming that you know what you are doing. Assuming if you are an expert, if you know that what you are doing, NAV नीचे है और मार्केट, मैं अगर ये समझता हूं कि ये मार्केट नहीं, मार्केट इकोनॉमी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। इकोनॉमी का एक ही रास्ता है, ऊपर ही ऊपर, नीचे नीचे जो जानी थी जा चुकी, अब इसका एक ही रास्ता है ऊपर की तरफ। तो अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, एक चीज, और दूसरी चीज कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकती है, पर मार्केट की एक्शन जो है हमेशा मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिसे हम कहते हैं सिंक में नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि मार्केट वही सोचे जो मैं सोच रहा हूँ। इकोनॉमी ऊपर जा रही है पर मार्केट वो रियलाइज नहीं कर रही है। तो मैंने जिस NAV पर सोचा था कि मैं म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूँ और ये अब ऊपर ही जाने वाला है, हो सकता है 2 महीने वो और भी नीचे चला जाए, सॉरी, तो प्रोवाइडेड मैं वो रिस्क ले सकता हूँ और मेरी वो अंडरस्टैंडिंग है तो मैं वो कर सकता हूँ। पर मैं अभी उस पॉइंट तक डिटेल में नहीं पहुंचा हूं, तो हम आगे बढ़ते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचते हैं। म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा और देर में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इक्विटी का तो मेजर कंपोनेंट है हमारी इन्वेस्टिंग में। इक्विटी कैसे? अगर मैं शेयर्स खुद खरीदता हूं तो सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करता हूं, पर मैं करता क्या हूं? इक्विटी में मैं पैसा लगाता हूं। कैसे लगाता हूं पैसा? आई डेबल इन इक्विटी के यहां से मुझे टिप मिली और मैंने शेयर्स खरीद लिए, होपिंग के जो उस मैसेज में क्या कहा गया था कि 20% की रिटर्न मिलेगी एक हफ्ते में, मिल गई 20% की रिटर्न। लकीली आपको 20% की रिटर्न भी मिल गई। आप और ज्यादा बोल्ड हो गए, आपने लोन ले लेके इन्वेस्ट करना शुरू, ट्रेड करना शुरू कर दिया। पर रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडिंग इन इक्विटीज इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम, एंड में आके सब कुछ जीरो है। अगर किसी का प्लस है तो किसी का माइनस जरूर होगा। तो हम टिप्स पर अगर काम कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेरीली प्लस हो जरूर सकता है, पर ज्यादा चांस क्या है कि वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? आप कहेंगे कि 50% चांस होना चाहिए प्लस का, 50% चांस होना चाहिए माइनस का, बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ट्रेडिंग में 5% ऑफ द इन्वेस्टर्स they become super rich at the cost of 5% traders become very very rich at the cost of 95% of the rest। किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का लाख, 2 लाख, ये सब 95% केसेस में माइनस होगा। और इसके अगेंस्ट जो 5% होंगे जो ह्यूजली पॉजिटिव होंगे, ये लोग कौन होंगे? या तो you may be a smart investor or a smart trader, but they are not smart traders, they are the smartest। तो ये सब कुछ है the smartest के लिए, जिनके पास क्वांटिटेटिव टूल्स भी हैं, टाइम भी है इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी है
और एक चीज जो मैं कहने जा रहा हूँ, जनरली कहा नहीं जाता है, सेबी के लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, पर ये दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। आप चार्ट देखते रह जाते हो और वो टेक्निकल चार्ट को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि आप सब लोगों को लगे कि ये स्टॉक बाई करने वाला है जबकि वो सेल कर रहे हैं, और आप सब लोगों को लगे कि ये स्टॉक सेल करने वाला है जबकि वो लोअर प्राइस पर बाई कर रहे हैं। तो 5% की कैटेगरी में अगर आप अपने को विश्वास करते हो कि हम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, क्वांट भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं, तो ठीक है। और इफ यू आर ओके कि हम दूसरों की कॉस्ट पे हम रिच हो रहे हैं, तो आप जरूर डबल करो, नहीं तो लीव दिस टूर, leave it to others to invest on your behalf. And fortunately, there are some people, some smart investors who are capable of investing on your behalf. तो हमें क्या करना है? हमें म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में डायरेक्टली ना लगा के हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाना है। सो दिस इज वन कंक्लूजन, बट let us not even jump to this conclusion. Let us look at the various aspects. तो क्या आप मान लो आप अपनी सेविंग्स अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देते हो, एंड दे आर स्मार्ट इन्वेस्टर्स, एटलीस्ट स्मार्टर देन मोस्ट ऑफ अस आर, और व्हाट डू दे चार्ज? दे चार्ज जस्ट ए स्मॉल, अगर मैंने 1 लाख रुपया उनको दिया है तो वो एनुअली उस पर क्या चार्ज करते हैं? वो 2%, 1.5%, 2%, 2.5% से ज्यादा फी चार्ज नहीं करते। वो सारा हमारा मनी मैनेज करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं, और हमें जब सेल करने हैं यूनिट्स तो वो सेल करते हैं, हमारे अकाउंट में मनी रिफंड करते हैं, और उसी में से वो अपनी भी कमाई करते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो हम म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे सकते हैं, पर क्या हम सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं? नो। इट इज अगेन एन इशू ऑफ बैलेंसिंग द रिस्क्स। पैसा कहाँ पर लगाएंगे? आज बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो गोल्ड में लगाना चाहिए। गोल्ड में जरूर लगाना चाहिए। इट हैज टू बी ए मिक्सचर ऑफ 3 or 4 things. Gold is to be a component. There should be a cash component, or what do we call सेविंग बैंक अकाउंट। उसका रोल है, जब आपको इमीडिएट मनी चाहिए तो सेविंग अकाउंट आपको इमीडिएट ऐसी लिक्विडिटी कोई और टूल नहीं देता जो कि सेविंग बैंक अकाउंट देता है। कैश घर में रखा हुआ है, इनसिक्योर है, सेविंग बैंक अकाउंट आपको लिक्विडिटी देता है। तो आपके पास गोल्ड भी होना चाहिए, कैश या सेविंग बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए आपकी अनफोर्सीन नीड्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स में भी होना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी होना चाहिए। और कौन से फिक्स्ड डिपॉजिट में होना चाहिए? बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले, एज आई एक्सप्लेन्ड, गवर्नमेंट के फिक्स्ड डिपॉजिट में होना चाहिए। ये वर्ड कहीं चलता नहीं है, गिल्ड फंड्स कहा जाता है। गिल्ड फंड्स हैं जो कि मोस्ट सिक्योर हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की तरह कॉर्पोरेट के भी बॉन्ड्स होते हैं, कंपनीज के भी बॉन्ड्स होते हैं, पर ये इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी रिस्की ज्यादा होती हैं। शेयर्स से रिस्की कम होती हैं, पर गवर्नमेंट बॉन्ड से रिस्की ज्यादा होती हैं, साथ ही रिटर्न भी ज्यादा देती हैं। टैक्स ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे गिल्ड फंड्स का होता है। तो हमने एसेट क्लासेस देखी, गोल्ड देखा, कैश थोड़ी सी जो है करंट नीड्स के लिए, हमने म्यूचुअल फंड्स देखे, हमने डेट फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखे, डेट फंड्स देखे, और नॉट टू फॉरगेट वन वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, रियल एस्टेट। सबका सपना होता है, पहली बार नौकरी लगती है, लगता है कि मेरा अपना एक छोटा सा घर हो। घर जरूर होना चाहिए, पर आज के टाइम में
अगर आप सोचते हो कि आप अपने बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए कहीं भी जा सकते हो, तो रिमेम्बर वन थिंग, रियल एस्टेट को मैनेज करने में, रेंट पर देने में, मैं एक जगह अपने घर को रेंट पर दे रहा हूँ, दूसरी जगह पर मैं किराए पर ले रहा हूँ, टैक्स ट्रीटमेंट भी कोई बहुत एफिशिएंट नहीं होता है। कहीं कहीं मुझे लगता है कि मेरे घर को किसी ने ऑक्युपाई ना कर ले, तो मैं क्यों ना मैं घर को लॉ की सीधा छोड़ दूं। मेरे किसी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई और मैंने सोचा मैं जिंदगी में कभी रेंट पर नहीं दूंगा। तो आज जब हमारी मोबिलिटी ज्यादा होने लगी है, हम बेटर जॉब्स के लिए इंडिया में ही क्यों, हम अब्रॉड भी जाते हैं, तो हमारे रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टी की, हाउस की अगर प्लॉट है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो लेट अस consider your house, residential property or such investments with all the plus and minus points which come with them. But the other classes are certainly worth investing in. Gold को ले हम, तो gold क्या है? Gold is never going to lose its luster. गोल्ड की चमक कभी कम नहीं होगी, दुनिया उलट से पलट हो जाएगी, world will turn upside down, but gold will have its value. और आज के टाइम में तो गोल्ड की लस्चर बहुत तेजी से बढ़ रही है, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम गोल्ड में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं ऐसे टाइम पर जब हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा चुका। हम इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब प्राइस ऊपर जा चुका। और गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि जब ऊपर जाता है तो 6 महीने में बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, उसके बाद जो है 6 साल के लिए वो कुंभकर्ण की नींद जाके सो जाता है। इट गोज टू स्लीप एंड पीपल नेवर थिंक ऑफ गोल्ड देन। तो व्हाट डू वी डू? डू वी इन्वेस्ट? डू वी नॉट इन्वेस्ट? तो हमें 5 से 10% एक प्रूडेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड शुड बी 5 to 10% ऑफ आवर टोटल एसेट्स। हमें ये नहीं सोचना कि दुनिया उलट पलट होने ही वाली है, हमें ये नहीं सोचना कि गोल्ड से कुछ नहीं मिलता, छोड़ो। तो गोल्ड में थोड़ा सा हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो दूसरी चीज है किस फॉर्म में हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में हो, और इसकी बजाय आज एक बहुत अच्छा टूल है गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स, थोड़ी सी रिटर्न भी देते हैं और गोल्ड की वैल्यू भी जो है प्रॉमिस की जाती है, गवर्नमेंट की प्रॉमिस है ये। तो गवर्नमेंट उस टाइम का जो गोल्ड का प्राइस होगा, 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल के बाद गोल्ड की जो वैल्यू होगी वो भी देगा, और बीच के पीरियड में आपको 2-2.5% इंटरेस्ट भी देगा। तो कहाँ हमारा बैंक डिपॉजिट और कहाँ गोल्ड? It will keep on appreciating in line with the rate of inflation, at least. Plus, it will give you, in the long run, not year after year, in the long run, it will keep on appreciating with the rate of inflation. Plus, if it is a government gold bond, it gives a marginal rate of return in the form of interest also. तो ये हो गया हमारा गोल्ड। कैश हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू ऊपर और नीचे जाती रहती है इक्विटी के प्राइसेस के साथ। अब मैंने बताया, एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, 25 दिसंबर से लेकर 23 मार्च के बीच में इसकी वैल्यू लगभग 40% गिर चुकी। तो गिर चुकी तो क्या ये ठीक है करना? हम 3 महीने में एक्चुअली देखते नहीं है, हम देखते हैं कि ये मनी हमारा अगले 10 साल में ग्रो होना है। 10 साल के पीरियड में अगर कोई एक एपिसोड है 20-30% ऊपर नीचे का, तो 10 साल के कंपैरिजन में वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। हमारी रिटर्न जो भी होगी, अगर 12% होगी, तो ऐसे एक एपिसोड से वो 12 की 14 भी हो सकती है, 12 की 10 भी हो सकती है, पर वो लॉन्ग टर्म से बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करेगी। तो वी कैन इन्वेस्ट, एज आई सेड, इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स,
I can invest in debt funds, which I said के debt funds में gilt funds भी आते हैं, corporate bond funds भी आते हैं. But then there is another very unique investment that is called a balanced fund. और बैलेंस्ड फंड का एडवांटेज देखने से आप पहले हम ये देखें कि अगर हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ी एडवांटेज है कि इक्विटी फंड में हमें सिर्फ 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 1 साल के बाद. अगर हमने एक अच्छा फंड मैनेजर पकड़ लिया और 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 30 इयर्स के बाद जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करूंगा, उसी टाइम मुझे 10% देना पड़ेगा. अगर मुझे 3 करोड़ मिला था तो मुझे 30 लाख देना पड़ेगा. उस टाइम पर बहुत बुरा लगेगा, पर रिमेंबर मैंने पिछले 30 साल में इस पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं दिया. वो कहीं ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होगा अगर मैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, सिर्फ गेन पर, इन्वेस्टमेंट पर नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मैं 10% टैक्स देता हूँ. तो दिस इज अ बिग एडवांटेज दैट इज ऑफर्ड बाय इक्विटी फंड. नाउ एज आई सेड, आई गो टू बैलेंस्ड फंड. बैलेंस्ड फंड क्या करता है? एटलीस्ट 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, 35% डेट में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो. उससे क्या होता है? वो रिटर्न फ्लक्चुएट नहीं करती है ज्यादा. बैलेंस फंड की रिटर्न ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, ज्यादा सेफ हो जाता है, पर फिर भी वो एडवांटेज इंटैक्ट रहती है कि मैंने जो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया था उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, तो बैलेंस्ड फंड पर भी मेरा सिर्फ वही 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहेगा. डेट में मैंने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, पर मैंने जो टैक्स पे किया वो सिर्फ इक्विटी फंड का पे किया. तो दिस इज अ बिग एडवांटेज कि बैलेंस्ड फंड है, डेट में भी है जो कि सेफ है, इक्विटी में भी है 2/3 जो कि रिस्की है, पर जो कंबाइंड ट्रीटमेंट है टैक्स के हिसाब से वो सिर्फ आई एम ओनली पेइंग 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. तो बट रिमेंबर वन थिंग, अगर डेट फंड अकेले होता तो मैं उसे रिडीम कर सकता था, पर जब मैं बैलेंस्ड फंड को रिडीम करूंगा तो मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं उसके इक्विटी पोर्शन को रिडीम करूं या डेट पोर्शन को रिडीम करूं. जब मैं रिडीम करूं तो वो पूरा का पूरा रिडीम होगा, मैं उसे 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकता. तो दिस इज ए ह्यूज एडवांटेज ऑफर्ड बाय इक्विटी फंड्स. अक्सर ये कहा जाता है, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स? एज आई सेड, डिपेंड्स ऑन टेम्परामेंट, but there is a simple sort of rule which you can tweak to your needs. आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितनी हो? 100 माइनस योर एज. अगर 25 की एज है तो आप 75% इक्विटी में रखो. अगर 40 की एज है तो आप मे बी 60% इक्विटी में रखो, पर 65 और 70 की एज में मे भी आप इक्विटी में बिल्कुल नहीं रखो तो ठीक होगा. ये रूल कम से कम 50 की एज तक तो अप्लाई होता है कि यू इन्वेस्ट 100 माइनस योर एज, व्हाटएवर इज द बैलेंस, इतना अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस. Mukesh? Yes, sir. As of now, there are no questions. We can carry on? Yes, sir, we can carry on. Probably at the end of the session, we will take more questions. Okay. Right now, the time is 11:50. Right. Okay, sir. So, we go on for another 10-15 minutes? Yes, sir. Yes, sir. Now, हमने डिसाइड कर लिया कि हमने मान लो 60% हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है.
तो क्या ये चॉइस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि म्यूचुअल फंड्स, तो देर आर अबाउट 42 म्यूचुअल फंड्स और सबकी अपनी अपनी स्कीम्स हैं. More or less every mutual fund has 5 to 10 equity schemes. तो क्या हम किसी में भी कर दें? No. You have to see the track record of that mutual fund. म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स मैंने बताया है 5-10, उसमें एक स्कीम कहलाती है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड. ये फंड किसी पर्टिकुलर टाइप के सेक्टर्स में नहीं इन्वेस्ट करता है. मान लो कि आज चारों तरफ कहा जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, या कहा जा रहा है आज नेटफ्लिक्स या अमेजोन टाइप के जो है प्राइम वीडियोस के इनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. पर ये बात तब होती है जबकि वो इवेंट हो चुका होता है. तो हम जब इन्वेस्ट करें तो हम किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करें जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता होगा, क्योंकि शायद वो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका होगा और उसके प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर के कम हो चुके होंगे. तो हमें प्रेफरेबली इन्वेस्ट एज ले इन्वेस्टर्स हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में. अब हर फंड की 1 या 2 डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करें. आप पिछले 5 या 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का नहीं, 5 साल का, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि उन्होंने क्या रिटर्न दी है. अगर इंडेक्स ने 12% की रिटर्न दी है और एक फंड ने लो वोलेटिलिटी के साथ आपको 15% की रिटर्न दी है, तो कुछ तो रीजन होगा कि वो 5 साल से 7 साल से 10 साल से हायर रिटर्न दे रहा है. और एक मैं साइट का नाम बताऊंगा, वेबसाइट का, valueresearch.com. ये यहाँ पर जो है, दिस इज द वेबसाइट, इट इज रन बाय प्रोफेशनल्स जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं. वो फंड्स को रेट करते हैं 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार एंड सो ऑन, और प्लस उस पर कमेंट्स भी देते हैं. तो आप वैल्यू रिसर्च को रेफर कर सकते हो कि कौन सी बेस्ट स्कीम्स हैं और कौन सी जो है एडवाइजेबल है कि लॉन्ग. कभी कभी फंड एडवाइजर का जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है वो तो कहता है कि ये 5 स्टार फंड है, पर इसके नीचे जो है, जो फंड मैनेजर की अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि मेरे टूल्स इस फंड को 4 स्टार बता रहे हैं, 5 स्टार नहीं है. ये म्यूचुअल फंड 4 स्टार है, पर एक्चुअली जो है वहां पर जो वेबसाइट को रन कर रहा है वो पर्सन जो है अपने व्यूज देता है. अगर आप उसे ट्रस्ट करते हो तो कहता है कि ये फंड 4 स्टार फंड होते हुए भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा एडवाइजेबल है. तो जहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है रिसर्च जरूर करो, उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं लगनी चाहिए. हम कुछ भी करते हैं, मार्केट में सब्जी लेते हैं, 4 दुकानों पर पूछने के बाद लेते हैं. तो हम म्यूचुअल फंड में अगर अपनी लाखों की सेविंग्स लगा रहे हैं तो जितनी रिसर्च हो सके वो कम नहीं है, वो मतलब वो ज्यादा नहीं है. आपको टाइम लगाना चाहिए, 1 दिन 2 दिन का टाइम लगाना चाहिए, पर ये नहीं कि आप डे टू डे बेसिस पर हम क्या करते हैं, फंड की एनएवी देखते हैं. हमें फंड की एनएवी नहीं देखनी है कि आज वैल्यू नीचे गई, कल ऊपर गई. हमें जो है अपने फंड्स की लॉन्ग टर्म रिसर्च करनी है. कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत अच्छा फंड मैनेजर जो कि इस फंड को मैनेज कर रहा था, जिसकी वजह से रिटर्न्स बेटर थी, वो उसकी रिटायरमेंट हो गई या वो छोड़ के किसी दूसरे फंड में चला गया. तो अब आपका फंड मैनेजर छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं कि आप अगले दिन फंड को लिक्विडेट कर लोगे. आप वॉच करोगे कि हु इज द न्यू फंड मैनेजर, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है. वो मे बी ही वाज द असिस्टेंट टू द फंड मैनेजर हियर. आपको
ओनली मीनिंग यही है कि आपको अपनी फंड को ज्यादा क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो नहीं आ रहे। तो अगर आपको सब कुछ सेफ लग रहा है तो यू कंटिन्यू विद योर फंड। आपको मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आप फुली इस फंड से एग्जिट करोगे। सो द लेटर द बेटर। पर अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके फंड की परफॉर्मेंस को नीचे गिराने वाली है सीरियसली, तो यू डोंट वेट टैक्स के चक्कर में और फंड की परफॉर्मेंस को गिरने के जो है गिरते हुए देखने की बजाय, it is time that you switch from this fund and you shift your investments to a better scheme at that point of time। तो हमें क्या करना है, फंड की एनएवी डेली नहीं देखनी है, 2 महीने में 3 महीने में एक बार हमें अपने फंड के बारे में मार्केट में जो भी न्यूज आता है, वैल्यू रिसर्च पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक और साइट है crisil.com, वहां पर म्यूचुअल फंड्स की इंफॉर्मेशन रहती है, moneycontrol.com, यहाँ सब पर आपको अपने फंड की इंफॉर्मेशन लेनी है और बहुत जल्दी में स्विच नहीं करना है। एक क्लोज वॉच के बाद अगर आपको लगता है कि स्विच करना है तो उसके बाद आपको वेट नहीं करना है कि एनएवी देखें गिरती है कि चढ़ती है, फिर नहीं करना। आपने जब रिसर्च कर ली तो देन यू switch your investment and then relax. Don't look at the NAV on a day-to-day basis. So this is the way that you invest in equity mutual funds. यहाँ पर मैं एक रिकॉल करूंगा, यहाँ हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फ्रैंकलिन का न्यूज पढ़ा होगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड को अचानक से अपने कुछ स्कीम्स में रिडेम्पशन रोकनी पड़ी। अब ये नहीं पता कि वो पैसा कब मिलेगा, शायद उसका मेजर पार्ट मिल जाएगा पर इमीडिएटली नहीं मिलेगा। बट व्हाट वर दिस फंड्स? These were not debt funds, these were not equity funds. What were these funds? In fact, they are sometimes called categories of debt funds. They are credit risk fund. फंड का नाम क्या बता रहा है कि इन्वेस्टर इसमें बड़ा रिस्क ले रहा है, क्रेडिट का रिस्क ले रहा है, पैसा डूब जाएगा तो डूबेगा पर मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। ये ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है जिसकी के रेटिंग बहुत लो है, और रेटिंग क्योंकि लो है तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो जो इंडिविजुअल्स क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट करते हैं, दे ऑलवेज डू दैट विद एन अवेयरनेस कि ये मेरा पैसा जो है ये डिफिकल्ट टाइम्स में, स्पेशली जैसे टाइम्स आज हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में फ्रैंकलिन का फियास्को हुआ भी तो इसी टाइम में ना, तो क्रेडिट रिस्क फंड में रिडेम्पशंस को ब्लॉक करना पड़ा। तो it is not necessary that a first time investor should invest in credit risk fund. They generally don't do. लोग जो 5 साल 10 साल बाद करते हैं वो अपना 5 या 10% पैसा ही यहाँ पर लगाते हैं, looking for higher returns। अगर मैंने किसी के कहने से ये इन्वेस्ट कर दिया क्रेडिट रिस्क फंड में ना जानते हुए कि ये फंड करता क्या है, तो then it is my own fault. I do not blame anyone else for that. Of course, I expect my mutual fund to be professional. अगर वो प्रोफेशनल नहीं रहे तो मुझे कंप्लेंट करने का पूरा राइट है, पर उससे पहले मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा फंड कर क्या रहा है और जो रिस्क ले रहा है मुझे उस रिस्क की नॉलेज है या नहीं है। तो someone like me has never invested in a credit risk fund, and those who have invested without their knowledge, they are certainly ruining their decisions. But by and large, I believe my audience for today, just a warning, फ्रैंकलिन में जो कुछ हुआ इसका मतलब नहीं कि कल दूसरे सारे फंड्स में वो सब होने वाला है। कल क्या होगा ये नहीं जानते,
पर जो क्रेडिट रिस्क फंड में हुआ वो जनरली इक्विटी फंड में वैल्यू नीचे आती है पर फंड को बंद नहीं किया जाता, और डेट फंड्स में सेफ्टी ज्यादा होती है, उस तरह से जो है वैल्यू बहुत ज्यादा गिरती नहीं है. तो दिस इज अबाउट द perspective on mutual funds. Now, before I take questions, let me conclude with some numerical examples. Let us assume there is a new investor, someone who has joined a job recently at the age of 25. He is into a job and he is a prudent person, a clever person, smart person. पहले दिन से ही जो अपनी पूरी की पूरी इनकम को स्पेंड ना करके कुछ अमाउंट एलोकेट करता है सेविंग की तरफ, और डिसाइड करता है, दिस पर्सन डिसाइड्स कि आई एम गोइंग टू सेव 5,000 पर मंथ, बट आई एम गोइंग टू प्ले सेफ and I am going to invest in fixed deposit of a bank at 7%, and I am going to do this for the next 30 years till the age of 55. Of course, ये 5,000 हमेशा सेम नहीं रहेगा, पर assuming that a person invests 5,000 per month in fixed deposits और कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, एक्चुअली रियलिटी में टैक्स देना पड़ेगा आगे चल के जब इनकम बढ़ेगी, पर अगर हम ये भी एज्यूम कर लें कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 5,000 आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हो और डालते रहते हो अगले 30 साल तक एवरी मंथ, तो व्हाट विल यू गेट एट द एज ऑफ 55? You will get 5,000 per month will yield you about 61 lakhs after 30 years at the age of 55. Now let us go one step further. मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता हूं और 10% के रिटर्न लेता हूं. 10% के रिटर्न कंजर्वेटिव है, बहुत हाई नहीं है. 10% के रिटर्न तो हमें मिलनी चाहिए. अगर मैं 5,000 लगाता हूं और थोड़ा सा स्मार्टली लगाता हूं तो जो मुझे रिटर्न मिलेगी वो क्या मिलेगी? 5,000 30 इयर्स तक लगाने के बाद I will get 1.13 crores. Remember, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में 61 lakhs, 10% के रिटर्न पर 1 crore 13 lakhs. अगर हम इससे और ऊपर जाएं, अगर हम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, लंबे टाइम तक रिस्क ले सकते हैं और रूल को छोड़ के हम 80-90% इक्विटी में लगाने को तैयार हैं, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हमारे में है, तो ये 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया हुआ पॉसिबल है. इट इज अ क्लियर पॉसिबिलिटी बट नॉट ए सर्टेनिटी. अगर 15% के रिटर्न अगर आपको आती है 30 इयर्स तक, तो व्हाट विल योर कैपिटल बिकम आफ्टर 30 इयर्स? It will become an amount of 3 crores and 46 lakh rupees. Of course, remember, उस टाइम पर मनी की वैल्यू कम होगी. आज के 3,46 crores, चाहे वो आपका फिक्स डिपॉजिट हो या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स हो जिसमें मैंने बताया 1.14, या आपका जो है इक्विटी फंड में हो एट 15%, इसकी वैल्यू उस टाइम पर शायद कुछ ना कुछ तो कम होगी. इन्फ्लेशन की वजह से मुश्किल से आधी रहेगी या मे बी इतनी भी नहीं, पर अब बिटवीन द टूल्स देखो, फिक्स डिपॉजिट में 61 lakhs और 15% के रिटर्न में 3 crores and 46 lakhs. और अगर आप स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स को भी बीट कर सकते हो, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो. समवन लाइक वॉरेन बफेट, he has had Warren Buffett of USA. He manages not only his own money, he manages money for maybe tens of thousands of investors.
or at the age of 85 what is he doing? He says के बहुत हो गया, मैं जिनका पैसा मैनेज कर रहा हूँ उन्हीं का ही करूंगा, मैं और लोगों से पैसा लेने को तैयार नहीं हूँ. देने के लिए लोग बैठे हैं, they get the return. So he has earned something like 18% return. What will that money become? It will become 5,000 per month will become more than 7 crores after 30 years. ये पैसा कहाँ से आएगा? ये किसी ना किसी की कॉस्ट पर आएगा. ले इन्वेस्टर्स जहाँ लूज कर रहे होंगे, तो ये मनी वॉरेन बफेट के अपने अकाउंट में नहीं है. अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो और भी शायद ज्यादा रिटर्न देती होंगी. ये तो वॉरेन बफेट की जो है बर्कशायर हैथवे जो इनकी इंस्टीट्यूशन है, उसमें लोगों का रिटर्न लगा, पैसा लगा हुआ है, उस पर ये रिटर्न है. तो this is what the variation looks like from 61 lakh rupees at a return of 7% per annum to more than 7 crore rupees at a return of 18% per annum. This is what the variation can look like, but then luck has to be at your side, and your effort in getting higher returns and your temperament at being able to bear the risks, that has to be with you if you have to reach a scale something like what I have mentioned. So this is where I conclude my basic presentation. I would welcome questions from the audience. So thank you, sir. Thank you so much. It was very informative. I have my question. Can we once discuss about the actual behavior of traders and investors, or the difference between trader and investor? Let's clarify that. Secondly, apart from NAV, apart from long-term performance of a fund or corporate bond, what other things we should look for? Like when you said the fund manager, we should look for the track record of fund manager. But are there any other factors that we should look for before investing in a fund or before investing in equity? Sure. Let us take these up one by one. Firstly, difference between a trader and an investor. Investor को क्या चाहिए? What is investor looking for? He is looking for long-term appreciation. What is a trader looking for? Trader भी दो types के होते हैं, day traders and short-term traders. Day trader को क्या चाहिए? Day trader को चाहिए सुबह जो है थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट, छोटा सा कैपिटल अलग रखा हुआ है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख, इससे जो है मैं सुबह शेयर्स खरीदता हूँ, शाम को बेच देता हूँ, या सुबह मैं बेचता हूँ, मेरे पास शेयर्स नहीं है फिर भी मैं बेच रहा हूँ, मुझे राइट है बेचने का, प्रोवाइडेड के जो मैंने बेचा था वो शाम होने से पहले पहले मैंने खरीद लिया. तो मैं सुबह खरीदता हूँ, शाम को बेचता हूँ, और सुबह बिना हुए बेचता हूँ और शाम को वो उसे कवर कर लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ. व्हाट एम आई लुकिंग फॉर? मैंने अपने रोज के 2-4 लाख रुपए लगाए, 2-3-4 lakhs मैंने लगाए, और उस पर किसी दिन मुझे जो है 2000 का नुकसान हो गया, ठीक है, आई एम ओके विद दैट. दूसरे दिन मुझे 3000 का प्लस मिल गया. तो इफ आई एम ऑफ द पर्सन ऑफ द टाइप कि 2000 चला गया तो चला गया, जाने दो, जिस दिन 3000 या 1000 मिल गया तो आई एम वेरी हैप्पी. तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एज ए ट्रेडर. नुकसान होता है तो भूल जाता हूँ, फायदा होता है तो खुशी खो लेता हूँ. महीने के एंड में जाके मे भी बैलेंस हो गया या मे भी नेट 5-10-20 हजार रुपया मिल गया तो वो और भी खुशी की बात होती है, पार्टी थ्रो कर दी. तो ये तो मतलब डे ट्रेडर का काम है. डे ट्रेडर को जो है कोई उसे ये नहीं चाहिए कि जो है मतलब 1 साल के बाद उसका कैपिटल क्या होगा, उसका जो मनी है लगा हुआ है वही लगा रहेगा. महीने के एंड में जो प्लस हुआ
वो ही विल एंजॉय हैविंग दैट सरप्लस, उससे वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। उससे मोस्टली जो है लोग अपना कहेंगे कि ये सैलरी थी 50,000 की सैलरी थी, ये 10,000 से ऊपर से और आ गया, तो ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है, नॉर्मल से बेटर होने वाला है। अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो वही चीज देखता है, आज शेयर बाई किया, एक हफ्ते में 2 हफ्ते में जो है उसे सेल कर दिया, तो होराइजन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, डे की टेंशन नहीं रहती है। मैंने सुबह अगर बेचा था तो शाम को तो मुझे खरीदना पड़ेगा, बिना शेयर हुए मैंने बेचा था तो मुझे शाम को खरीदना पड़ेगा, और मैं देख रहा हूँ टाइम हो रहा है, मेरा शेयर मैंने जितने का बेचा था उसके ऊपर जाएगा तभी तो मुझे मतलब उसके नीचे जाएगा तभी तो मुझे फायदा होगा। मैंने 1,000 का बेचा था, अब मुझे खरीदने के लिए वो चाहिए 980 रुपए का, अब वो 1,000 के नीचे ही नहीं आ रहा, मुझे जो है वो टेंशन हो रही है कि मुझे सारा दिन लगा दिया प्राइस गिरने का और ये प्राइस गिर ही नहीं रहा, मुझे हायर प्राइस पर लेके अब इसे स्क्वायर अप करना पड़ेगा। तो वो सारी टेंशन जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में होती है, पर उसके साथ एक्साइटमेंट है। अगर आप एक्साइटमेंट चाहिए तो नथिंग लाइक दैट, और आपके पास टाइम भी है तो। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टेंशन कम हो जाती है, रोज का प्राइस आपको एक मिनट का प्राइस नहीं देखना है, आपको जो है मतलब एंड ऑफ द डे प्राइस देखना है, फिर ये देखना है कि कितनी वॉल्यूम थी, कितने शेयर्स ट्रेड हुए, किधर जा रहे हैं, प्राइस मूवमेंट किधर, कल का ये प्राइस था, परसों का ये प्राइस था, आगे ये और ऊपर जाने की चांस है, तो फिर आप पूरा दिन ट्रैक करना शुरू कर देते हो। ये 3-4 शेयर्स मेरे पास हैं, इनमें से ये X या Y, ये 2 शेयर्स हैं जिनको कि मैंने आज पूरे दिन में ट्रैक करना है, जहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी आए मुझे ये बेच देना है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ये भी मोर और लेस वही है। इसमें मैं कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं देखता हूँ, इसमें मैं देखता हूँ कि मेरी इनकम में एडिशन हो जाए। और तीसरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जब मुकेश ने पूछा वो दैट इज अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, और म्यूचुअल फंड्स में हमें रिसर्च देखनी है, रिसर्च रिपोर्ट्स जो आती हैं फंड्स के बारे में उनको भी बहुत क्लोजली करना है, म्यूचुअल फंड को अंडरस्टैंड करना है। हो सके तो, मैं कह रहा हूँ हो सके तो, हर किसी एवरीवन इज नॉट कैपेबल ऑफ दिस, हम फंड्स को ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने किस किस शेयर में पैसा लगाया, क्या ये शेयर्स बहुत जल्दी चढ़ते या गिरते हैं, क्या ये बहुत रिस्की हैं या कि ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमें ये देखना है। फंड मैनेजर किस तरह क्या परफॉर्मेंस देता है। आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो गई है, जो म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़े हो चुके हैं, जिनके एसेट्स की वैल्यू 10,000, 15,000, 20,000, किसी किसी केस में तो 30-30 हजार करोड़ हो गई है। तो ये फंड्स अगर इनकी जो है एक एक स्टॉक में इनके 2-2, 3-3 हजार करोड़ लगे हुए हैं, अगर इनको लगता है कि ये फंड ये शेयर नीचे गिरने वाला है, जैसे ही वो बेचना शुरू करते हैं तो वो शेयर बहुत नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब ना ये शेयर को आसानी से एग्जिट कर सकते हैं, ना ये आसानी से इंटर कर सकते हैं। अगर शेयर बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर जाने लग जाता है, शेयर को सेल करते हैं तो प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। तो हमारे जो बहुत बड़े फंड्स हैं जिनका ब्यूटीफुल ट्रैक रिकॉर्ड, पर उसी ट्रैक रिकॉर्ड की सजा वो भुगत रहे हैं। इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, इतने लोगों ने इन पर विश्वास किया, अपना पैसा डाला, पर आज की डेट में ये फंड्स अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, पर इस हैंडीकैप के साथ, इस कॉन्स्ट्रेंट के साथ कर रहे हैं कि स्टॉक को आसानी से इंटर नहीं कर सकते, स्टॉक को एग्जिट नहीं कर सकते, रिसर्च इंटैक्ट है, बाकी सब कुछ इंटैक्ट है, पर मार्केट उनको हैंडीकैप कर देती है स्टॉक्स को बाय करने में या सेल करने में, रिटर्न कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। उतनी ही रिसर्च करने वाले जो छोटे फंड्स हैं, रिसर्च में जिनकी सेम एबिलिटी है,
मे भी ट्रैक रिकॉर्ड 20 साल का नहीं है, 3 या 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड का साइज छोटा है, तो उसमें इन्वेस्ट करना कहीं ज्यादा पेइंग हो सकता है compared to a fund which has a longer track record, maybe 10 or 15 years, but with its own negative point कि फंड का साइज इतना बढ़ चुका कि फंड मैनेजर कभी कभी तो ये कह देते हैं हमें और पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो, फंड मैनेजर हाथ जोड़ता है, मुझे और पैसा नहीं चाहिए, मेरे लिए इससे ज्यादा अमाउंट मैनेज करना इम्पॉसिबल हो गया। तो आप कहीं ना कहीं बेटर ऑफ हो सकते हो उन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जिन्होंने के किसी ना किसी वजह से ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल का है पर किसी वजह से बहुत बड़े नहीं हो सके, रिसर्च बहुत अच्छी है पर फंड का साइज 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, बजाय कि वो फंड जिसका साइज 20,000 करोड़ है। तो आपको क्या देखना है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एक चीज आती है एसेट अंडर मैनेजमेंट, अगर 20,000 करोड़ है तो लिटिल एप्रीहेंशन, इवन विद द ट्रैक रिकॉर्ड यू बिकम अ लिटिल एप्रीहेंसिव। अगर फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1500 करोड़ हैं तो देन दिस इज वन बिग प्लस, आप इस फंड को सीरियसली कंसीडर कर सकते हो अगर इसकी रिसर्च और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और one more thing, just wanted to add this earlier, maybe missed on this point, हमें NAV को नीचे जाते हुए देख के चिंता नहीं करनी। हर फंड का बेंचमार्क होता है कि ये फंड कहता है कि मैं निफ्टी से अपने को ट्रैक करूंगा, अगर निफ्टी की रिटर्न 30% नीचे चली गई, जैसा कि पिछले 3 महीनों में हुआ, 40% बल्कि नीचे चली गई, और फंड ने अगर -25% की रिटर्न दी, निफ्टी ने -30% की दी, आपके फंड ने 25% माइनस की दी, तो क्या ये बुरा किया? इज इट बैड? आप कहोगे कि नहीं 25% मेरी एनएवी नीचे चली गई। नो, यू नीड टू रियलाइज कि इक्विटी इज रिस्की। अगर बेंचमार्क 30% नीचे गया, फंड 25% नीचे गया, तो ऑल क्रेडिट टू द फंड मैनेजर। पर अगर इंडेक्स 30% नीचे गया और आपका एनएवी 35% नीचे गया, तो आपको देखने ये टेम्परेरी हो सकता है, आपको फंड पर नजर रखनी है, पर अगले दिन आपको एग्जिट करने का नहीं सोचना है। आपको ये ट्रैक करना है कि कहीं मार्केट की रीडिंग, फंड मैनेजर की रीडिंग बेशक ज्यादा सेंसिबल हो, पर मार्केट में जो हर तरह के प्लेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सबकी रीडिंग जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगी। तो फंड मैनेजर हो सकता है इन द लॉन्ग रन करेक्ट हो, पर इन द शॉर्ट टर्म वो बेंचमार्क से भी नीचे चला गया माइनस में, तो आपको ध्यान रखना है, पर फंड को एग्जिट नहीं करना। पर लॉन्ग टर्म में आपका फंड मैनेजर 5 साल के पीरियड में आपका फंड मैनेजर अगर निफ्टी को बीट नहीं करता तो वो कुछ नहीं करता, वो फिर जो है यू नीड टू सीरियसली कंसिडर एग्जिटिंग दिस फंड। आपको बेंचमार्क के साथ ट्रैक करना है, दूसरे फंड्स के साथ ट्रैक करना है, वो भी आता है द बेस्ट। इस कैटेगरी में 100 फंड्स हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, आपका फंड अगर नंबर 6 है तो आपको ये नहीं कहना कि मुझे नंबर 1 तक पहुंचना है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पोजीशंस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। जिस दिन आपने नंबर 1 को एंटर किया, दूसरे दिन ही आप देखेंगे कि वो नंबर 3 पर आ चुका होगा। तो योर फंड्स हैव टू बी इन द top category of performers, and of course they are expected to beat the benchmark over a 5 or 10 year period. So that answers the 2 questions put up. Yes, sir. Thank you so much. We have no questions from the online chat, so Right. probably it's time to end the session. I would like to thank you from bottom of our heart, and being so kind to accept this
invitation to take a session for us. I hope it will benefit most of the small traders or investors, those who are looking into the prospects of growing their money. Thank you, sir. Thank you, Mukesh, for giving the opportunity. It was a pleasure addressing the online audience, and I hope a few of the people, newcomers to investments, to equity, will have some points clarified, and even if it benefits maybe 5, 10, 20 people in their long journeys of their life, in their professional careers, uh, this would this webinar would have been extremely successful. So thanks for giving me this opportunity, and over to you, Mukesh. Thank you, sir. I would like to hand over to Prashant, sir, to conclude the session. And This my apologies to Prashant. I do thank Prashant also for this opportunity. After all, it is he is who is the guiding force, the motivating force behind all that NAB has been doing over the last few days. and to add up, sir, it is my sincere thanks to Prashant, sir, as well, for taking this request instantly. Like, I just called him once and he like accepted the idea of doing this session. Thank you, Prashant, sir. Thank you, Professor Khurana, and thank you, Mukesh. I am sure this interaction of ours will be a very important and useful resource on the YouTube channel as well. I expect that many people will come and view our discussion. And so thank you very much. And viewers, we look forward to meeting you in the webinar today evening and also in the coming weeks. Thank you, and bye everyone. Thank you.